কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে মানো নৈনম পশ্যন্ত চেতসঃ 15 অধ্যায় পুরুষোত্তম যোগ শ্লোক নম্বর 11 যতন্ত যোগিনশ্চৈনম প্রসন্ন তাত মন্য বস্তিতম যতন্ত হপ কি তাত মানু নৈনম পশ্যন্ত চেতসঃ। ওকে, আচ্ছা বলো, একজন বলো দেখি। যতন্ত যোগিনশ্চৈনম পশ্যন তাত্মন্য বস্তিতম। ভেরি গুড। যতন্ত হপ যতন্ত হপ কিতাত্তান মানো কিতাত্মান নৈনং পশ্যন্ত চেতসঃ। যতন্ত যোগিন চৈনং পসন্ত তানব পসন্তাৎ মন্য বস্তিতম বস্তিতম যতন্ত হপ কিতাৎ মানো নৈনং পশ্চান্ত চেতসঃ। যতন্ত যোগিনম চৈনম পশ্যন তাত মন্য বস্তিতম যতন্ত হপ কি তাত মানো নৈনম পশ্যন্ত চেতসঃ। যোগিনশ্চৈনং পশ্যন তাত্মান্য বস্তিতম যতন্ত হপ যতন্ত হপ কিতাত্মান্য নৈনং পশ্যন্ত চেতসঃ। अच्छा फिर से मैं बोल देता हूँ एक बार। চেতসঃ যতন্ত যোগিনশ্চৈনম পশ্যন তাত মন্য বস্তিতম যতন্ত হপ কি তাত মানো নৈনম পশ্যন্ত চেতসঃ। ওকে, ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড বলছি, ঠিক আছে? আমি প্রথম বলবো, তারপর তোমরা বলবে, তারপরে ওর মানেটাও আমি বলবো। যতন্ত হ যত্নশীল যোগিনঃ যোগীগণ চ ও এনম এই পশ্যন্তি দর্শন করতে পারেন আত্মনি আত্মায় অবস্থিত যতন্তঃ যত্ন পরায়ণ হয়ে ওপি ও অকৃতাত্মানঃ আত্মতত্ত্ব জ্ঞান রহিত না এনম এই পশ্যন্তি দেখতে পায় চেতসঃ অচেতসঃ অবিবেকীগণ। ঠিক আছে, ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড হলো, মানে অনুবাদটা আমরা দেখছি। ঠিক আছে। আত্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত যত্নশীল যোগীগণ এই তত্ত্ব দর্শন করতে পারেন, কিন্তু আত্মতত্ত্ব জ্ঞান রহিত অবিবেকগণ যত্নপরায়ণ হলো এই তত্ত্ব অবগত হতে পারে না। এর মানেটা হচ্ছে, আমি বলে দিই বাংলাতে। আগের শ্লোকটাতে আমরা কি পড়েছিলাম যে উৎক্রামন্তম স্থিতম ব্যাপী ভুঞ্জানাম গুণান্বিতম বিমূঢ়া নানু পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ। 15 অধ্যায় का 10 নম্বর শ্লোক, ঠিক আছে? মূর লোকেরা দেখতে পায় না, মানে মূর আদমি লোক মালুম চলে না যে মানুষ মরে গেলে
বা এই যে দেহটা পড়ে থাকে আত্মাটা চলে যায়, কিন্তু যে চক্ষু বিশিষ্ট মানে ভগবানের কৃপায় যার জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে বা গুরুদেবের কৃপায় যারা জ্ঞান অর্জন করেছে তারা সেই ব্যাপারে পুরো জানতে পারে যে বডিটা হচ্ছে পৃথিবীর জন্য পড়েই থাকবে এবং আত্মাটা ভগবানের কাছে তার হিসাব নিকাশ হবে, মানে আমরা যে কর্মফলটা ভোগ করছি। তা 11 নম্বর শ্লোকে ভগবান কি বাতাচ্ছে যে 11 নম্বর শ্লোকে আমরা তাৎপর্যতে দেখছি ভগবান বাতাচ্ছে যে অনুবাদে কি বাতাচ্ছে, আত্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত যত্নশীল যোগীগণ এই তত্ত্ব দর্শন করতে পারেন। যাদের আত্মজ্ঞান মানে ভগবান ব্যাপারে যত্নশীল আছে যোগীগণ তারা ওই তত্ত্ব ব্যাপারে আত্মার ব্যাপারে পুরোপুরি জানতে পারে, কিন্তু আত্মতত্ত্ব জ্ঞান রহিত অবিবেকীগণ যত্নপরায়ণ হলেও এই তত্ত্ব অবগত হতে পারে না। কেন? তাদের আত্মজ্ঞান রহিত অবিবেকী মানে বিবেক নেই আত্মর সম্বন্ধে, আত্মা যে আছে তার সম্বন্ধে। আত্মাটা যে সূক্ষ্ম আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে পড়েছিলাম, কিন্তু ওটা সবাই আসেনি শ্লোকে যবি হোক। এই বলছি দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা পড়েছিলাম আত্মা অস্ত্র দ্বারায় কাটা যায় না, বা আত্মা জলে শুকানো যায় না, বা যাই সবকিছু যে সিস্টেমটা বলা হয়েছিল, আত্মার কোনো ক্ষয় নেই। আত্মাটা হচ্ছে পাপ পুণ্যের সাথে বহন করে ভগবানকে হিসাব নিকাশ হয়, আর বডিটা আমাদের আমরা যতই কিছু করি না কেন বডিটাই পড়ে থাকে। তো এইটা হচ্ছে 11 নম্বর শ্লোকের তাৎপর্যটা দেওয়া হচ্ছে। তো 10 নম্বর থেকে 11 নম্বর এটা একসাথে কানেক্টেড থাকছে, ঠিক আছে। 10 নম্বর হচ্ছে মানে বুদ্ধিমান নয় যে সেটা যে মূর্খ সে বুঝতে পারলো না, কিন্তু যার জ্ঞান আছে চক্ষু বিশিষ্ট আছে সে বুঝতে পারলো। আর তারপরে শ্লোকটাও বলছে যে একই সেমই আত্মজ্ঞানে যারা অধিষ্ঠিত আছে মানে যত্নপরায়ণ আছে তারা তত্ত্বদর্শ সম্বন্ধে দর্শন করতে পারে। তো চক্ষুদের মনে সবকিছু ভাব আছে তাই সে জানতে পারে, কিন্তু আত্মতত্ত্ব জ্ঞান রহিত অবিবেকী মানে বিবেক নেই, তাকে অবিবেক যত্নপরায়ণ হলে সে অবগত মানে জানতে পারে না। ওকে, আচ্ছা তাৎপর্যটা আমি একবার দেখছি। আত্মজ্ঞান লাভের পেয়াসী বহু সাধক আছেন, কিন্তু যে আত্মজ্ঞান লাভ করেনি সে জীবদের সমস্ত কিছুর পরিবর্তন কিভাবে হচ্ছে তা দেখতে পায় না। এই সূত্রে যোগী নহ কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক যুগে তথাকথিত অনেক যোগী আছে এবং তথাকথিত বহুত যোগাশ্রম আছে, কিন্তু আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের ব্যাপারে তারা বাস্তবিকই অন্ধ। তারা কেবল এক ধরনের দেহচর্চা সংক্রামন্ত ব্যায়ামে আসক্ত এবং দেহ যদি সুস্থ সবল থাকে তাহলেই তারা সন্তুষ্ট হয়। এছাড়া আর অন্য কোনো তত্ত্ব তাদের জানা নেই। তাদের বলা হয় যতন্ত কি তাত মনঃ, যদিও তারা তথাকথিত যোগ পন্থা প্রয়াস করছে, কিন্তু তারা আত্মজ্ঞানী নয়। এই ধরনের লোকেরা আত্মার দেহান্তর সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারে না। যারা যথার্থই যোগ পন্থা অনুসরণ করছেন তারাই কেবল আত্মা, জগৎ ও পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে কৃষ্ণ ভাবনায় শুদ্ধ ভগবত ভক্তিতে নিযুক্ত ভক্তিযোগী কেবল উপলব্ধি করতে পারেন কিভাবে সবকিছু ঘটছে। ঠিক, আমি একটুখানি হিন্দিতে বলে দিই, কেন আমাদের তো সবাই আছে হিন্দি लोग আছে, तो मैं बोले दीजिए। अभी जो ये श्लोक में बताया गया, जो आत्मज्ञान मतलब जिसका मालूम होता है आत्मज्ञान संबंधी प्रयास करता है, वो लोगों को अंदर बॉडी का अंदर जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा जो है, उसका बारे में पूरी मालूम होता है। और क्या होता है, ये सूत्र में वो लोगों को मालूम होता है जो ये जो देह है क्षणस्थायी है। हम लोगों को टेम्पोरली ये बॉडी मिला है, ये बॉडी इसलिए भगवान ने बनाया दिया हम लोगों को कर्म का, पिछले जन्मों का जो कर्म होता है उसका हिसाब से हम लोगों को पाप पुण्य लेके ये जगत में हम लोग आया। किसी का मतलब परिवार का अंदर वो सेटल होके हम लोगों को पैदा होना पड़ता है, ठीक है। तो जोगिनों कथाटाई बहुत तात्पर्यपूर्ण है। जोगी जो है वो लोगों को बहुत कुछ करता है। क्या क्या करता है जोगी, मतलब ध्यान करता है, एक्सरसाइज करता है। जो लोग अभी देखता है ना व्यायाम, क्या बोलते हैं, योग व्यायाम, योगा और
जो लोग और भी खूब बॉडी बनाने के लिए प्रयास करता है, वो तो जैसा जिम। जिम है, जिम उसको अभी मतलब वैज्ञानिक पद्धति में उसमें जिम हो गया, जिम। না, জিম আলাদা, যোগ আলাদা। हाँ, योग व्यायाम अलग है, वो वैदिक प्रथा हिसाब से योग व्यायाम है। और जिम जो है वो सिर्फ ओनली बॉडी को बनाने के लिए वो लोग प्रयास करता है। जोगी लोग भी आत्मा का बारे में इतना मालूम नहीं होता है, वो लोगों को बॉडी का जो कैसे कैसे रागने का मतलब सुस्त होने का वो प्रयास करता है। वो लोगों को भी इतना आत्मा का बारे में मालूम नहीं होता है। और जो लोग जिम करता है वो लोगों को भी आत्मा का बारे में मालूम नहीं होता है, क्योंकि वो लोगों को इसलिए मालूम नहीं होता है, वो लोगों को शास्त्रों अध्ययन नहीं करता है। अब सदगुरु का पास नहीं जाता है, सत्संग नहीं करता है। सत्संग करने से क्या होगा? सत्संग सत्संग सर्वशास्त्रे कहे, सत्संग लयमत तो सर्व सिद्धि लाभ है। इसका मीनिंग है जो सत्संग करेगा तो एसोसिएशन करेगा तो सत्संग होगा, हम लोग को हर चीजों के बारे में मालूम होगा, माने प्रतिफलन होगा, जो ये चीज ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, मतलब शास्त्रों के बारे में जो बताया गया वो मालूम होगा। इसलिए सर्वशास्त्रों में बताया गया सत्संग करो, हर शास्त्र में जो जैसा भी होने दो, ऐसा नहीं है जो ये है वो है, ऐसा नहीं बोल सकते, जो जैसा भी होने दो सत्संग करेगा तो वो लोगों को शास्त्रों के बारे में मालूम होगा, परफेक्टली मालूम होगा। आज जो लोग सत्संग नहीं करके एक्सरसाइज करेगा वो लोग सुस्त रहेगा, क्योंकि वो लोगों को सात्विक आहार के बारे में मालूम नहीं होगा। इसलिए वो लोगों को जो टाइमिंग दिया गया उससे भी कम होते जाएगा उसके एज। जैसा सोचा अभी का कलियुग में आयु होगा 100 ईयर्स, 100 से आगे अभी कोई नहीं बचता है, क्योंकि हम लोगों को खाने पीने का बहुत सारी चीज को मालूम नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग का एज भी कम हो जाता है। जैसे सूरज उठने का पहले 1 घंटा पौने 1 घंटे का पहले उठना चाहिए, उसको ब्रह्म मुहूर्त तो बोला जाता है। सूरज उठने का 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए, हर आदमी के लिए साथ बताया गया, हर शास्त्रों में बताया गया, किंतु कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए सूर्य ग्रास हो जाता है। इसमें हम लोगों को क्या होता है, सूर्य ग्रास होने से हम लोग का आयु वर्धन मतलब कम हो जाता है, हम लोग को बीमारी होता है, कठिन कठिन बीमारी होता है, हम लोगों को मालूम नहीं होता है। और सात्विक आहार करने के लिए हम लोगों को कोई मतलब हम लोग एक्सरसाइज कर सकता है, जैसा शास्त्रों में बताया गया। हम लोग भगवान का पास डांस करके भी, हाथ ताली मार के भी कर सकते हैं। थोड़ा आधा घंटा डांस कर लिया, डांस करेगा भी हम लोग पूरी मतलब एक्सरसाइज का सेम काम हो जाएगा। मतलब आधा घंटा मतलब डांस कर लिया भगवान का पास तो एक्सरसाइज ही हो जाता है। तो एक बार अभी उसका ऊपर भी हम लोग थोड़ा बहुत जैसा जोगो एक्सरसाइज दिया गया वैसा ही कर सकते हैं। उसके आगे जो हम लोग जो जिम करता है बॉडी के लिए ओनली, वो हम लोगों को पैरालाइज वगैरह ये वो बहुत सारी रोग बीमारी हो जाते हैं। जिस टाइम हम लोग को छोड़ देता है, करते जाएगा फिर ठीक है। अगर हम लोग को जिम वगैरह छोड़ देगा, झट से हम लोगों को एक बीमारी होता है, उसमें हम लोग खत्म हो जाता है। इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जो योग व्यायाम फिर भी चलेगा और उसमें भी ज्यादा नहीं, आधा घंटा ओके, आधा घंटा होगा, हम लोगों को शरीर फिट रहेगा। क्या 15 मिनट हम लोग एक जोर से क्या बोलता है भाग सकता है, भागने का, सोचने का, एक करने का। तो हम लोगों को योग व्यायाम यही वही बात आ रहा है जो देह चर्चा का व्यायाम का दिया गया है। व्यायाम कर सकते हैं, मतलब डांस करेगा तो सबसे अच्छा भगवान का वो भी व्यायाम होगा। ऊपर छलांग मारेगा, नीचे कूदेगा, फिर ऊपर उठेगा, ऐसा करेगा तो वो भी व्यायाम का चर्चा का चलेगा, वो मुश्किल नहीं है। और हम लोगों को शास्त्रों के बारे में पूरा मालूम होगा और व्यायाम करेगा तो हम लोग को हर चीजों का मालूम में प्रयास होगा। और आत्मज्ञानी जो नहीं है वो लोगों को भगवान का बारे में कुछ मालूम नहीं हो रहा है और देहों का बारे में मालूम हो रहा है। वो लोगों का देहों का जो ये बॉडी है उसका बारे में ज्यादा मालूम होता है, जो लोगों को आत्मा का बारे में मालूम नहीं होता है। वो लोगों को देहो मतलब बॉडी लेके ही ज्यादा व्यस्त रहता है। कैसा बॉडी ऐसा रखने का, कैसा बॉडी वैसा। बॉडी आप कितना भी कोशिश करो, अगर आपका आयु वर्धन होगा 1.5 घंटा पहले अगर नहीं उठेगा, आपका 100 साल एज होगा। अभी तुम देखो जो लोग बॉक्सर होता है वो लोग क्या बहुत साल जीता है, नहीं जीता है। जो लोग खिलाड़ी है वो लोग भी ज्यादा नहीं जीते, क्योंकि वो लोग भी तो बॉडी का चर्चा कर रहे हैं, नहीं होगा, क्योंकि वो लोगों को मालूम नहीं चल रहा है जो शास्त्रों का साथ साथ
बॉडी का प्रयास करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। मैं ऐसा मतलब हम लोग को जो जड़ जागतिक गेम के लिए भी बोलता हूँ, फुटबॉल क्रिकेट जो भी हो, आप आधा घंटा कर सकते हैं, अगर करेगा भी वो अच्छा है। फिर बाद में हम लोग को शास्त्रों का भी ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ ओनली खेलेगा ऐसा नहीं होगा, खेलने का साथ साथ शास्त्रों का ध्यान, तो उसका बॉडी का फिट का और कैसा कैसा चलना चाहिए उसका ध्यान रखना। जैसा हम लोगों को बताया गया सात्विक आहार, सात्विक आहार में हम लोगों को पूरा प्योर वेज होता है। तो उसमें क्या होता है, आयु मतलब लॉन्गजिविटी होता है। और जो लोग मान लो मच्छी मटन और क्या क्या है वो जो चीज खाता है, उसमें हम लोग का आयु कम हो जाए। तुम बोलो अभी का दिन में कौन सा आदमी लोग कितना दिन जी सकता है जो ये सब खा कर, जो लोग नहीं खाए वो लोग कितना दिन जी रहा है। ये तो अभी तो उस दिन टीवी में दिखाया 125 साल भेज खा के, और कौन जिया अभी दिखाओ, कोई नहीं जी सकता, क्योंकि उसमें आयु वर्धन नहीं होता है। हम लोगों को नेशा का जो बात बोल रहा हूँ वो तो एक तो खत्म है, वो अलग बात है। और खाने का भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जो खाना का भगवान ने बताया, पत्रोम पुष्पम फलोम तोयम जो में भक्ति पयोच्छति तदोम भक्त पत्तात्मनः पश्चात्सामि, 9 अध्याय 26 नंबर श्लोक में, ठीक है। पत्रों पुष्पम अर्पण करके देगा तो मैं उसका देगा, वो आदमी खा सकता है। ओके, यही लोकेरा आत्मतत्व किचु बुझते पारे ना। और जो लोगों को मालूम होता है वो लोग कृष्ण भक्ति में प्रयास करता है, तो वो लोगों को क्या होता है, वो लोगों को जितना टाइमिंग होता है पूरा पूरी, अगर एक आदमी छोटा से कृष्ण भक्त होगा, उसका जो 50 साल एज होगा, 60 होगा, जो भी होगा, उसको पूरा टाइमिंग मिलेगा। और एक बात है, जो बीमारी कम होगा। हम लोग ना जितना खाने का पीछे ज्यादा भागते रहता है, ऑयल वगैरह ज्यादा खाता है ना, उसमें हम लोग को बीमारी ज्यादा होता है। हम लोग जितना सात्विक मतलब हल्का ऑयल, मतलब वेज खाएगा, जितना फ्रूट, हर चीज में एक सिस्टम होगा। एक फ्रूट बोलेगा तो ज्यादा फ्रूट भी नहीं, एक दिन एक एप्पल खाओ, आपका कैंसर का बीमारी कम हो जाएगा। अब लोग कोई आदमी का कैंसर का बीमारी होता है ना, तो लोगों को भी हर रोज एक एक एप्पल खाना चाहिए। एप्पल खाएगा तो कैंसर का, वो भी कैसा खाना चाहिए, एप्पल को अच्छा तरफ से धो के, क्योंकि अभी जो केमिकल मिला हुआ है वो भी खतरनाक हो सकता है। सबसे अच्छा गर्म पानी में अच्छा करके धोने का, धो के फिर उसको खाने का, तो अच्छा होगा। और भी सारी चीज है, जैसा शाकाहारी बोलेगा तो ये होता है साग सब्जी है। साग सब्जी हम लोगों को पालक और मूला और क्या क्या बोलता है वो, जो लोटी जो भी है, जितना सारी हरा सब्जी हर खा सकते। और चटनी, पुदीना का चटनी बहुत इम्पोर्टेंट है, हर रोज थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। तो ये सब खाने से हम लोगों को एज मतलब अच्छा रहेगा। और हर रोज दूध हम लोगों को रात को 1 गिलास, ज्यादा नहीं 1 गिलास खाना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा खाएगा तो उसमें भी थोड़ा एक हो जाता है प्रॉब्लम। जो लोग का हाई प्रेशर होता है वो लोगों को प्रेशर किंतु बढ़ जाएगा, क्योंकि वो पावरफुल है बहुत। तो हम लोगों को एक ध्यान रखना चाहिए, 1 गिलास, ओके 1 गिलास वो हो गया। और क्या, फ्रूट 1 होने दो, एप्पल बनाना कोई भी हो, फ्रूट 1 लेने का हर रोज में। तो हम लोगों को जो जो बीमारी का झुकी है वो कम होते जाएगा। जैसा बोलेगा सर्दी, खांसी और कोई संक्रमण बीमारी है, उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, मधु का साथ दूध पीना चाहिए, गर्म पानी का साथ मधु दे के पीना चाहिए। और लवंग, तेजपाता और क्या बोलता है, लवंग, तेजपाता, गोलमरीच, ये सब देख के और थोड़ा मतलब उसका पीसा करके हल्का करके, तो उसको पानी से उगल के अदरक देख के पिएगा तो हम लोगों को सर्दी खांसी का बीमारी का कम होगा। और ज्यादा भूखा रहो तो डॉक्टर को थोड़ा दिखाने का, उसका बाद दूध पीने का। दूध पिएगा तो हम लोगों को जो सर्दी का जो बीमारी होता है वो झट से खत्म होता है। एकदम प्रैक्टिकली है, हर आदमी को मालूम हो रहा है, अभी जो चल रहे हैं अभी इसमें मालूम चल रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब है, जो लोग कृष्ण भक्त होता है वो लोग शुद्ध आहार करता है। भक्ति योग के लिए हम लोगों का सब आदमी को मालूम होना चाहिए, भक्ति योग के लिए हम लोगों को सात्विक आहार और जरूरी है। और क्या क्या है,
काढ़ा, काढ़ा बोलेगा तो वो जो बात है, चाय 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 क्या, चाय कॉफी वो नहीं खाना चाहिए। और ड्रिंक, ड्रिंक बोलेगा तो हम लोग जो नेशा का बोलेगा वो तो क्लोज है। और एक ड्रिंक है जो है पेप्सी, कोको कोला, ये सब नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें कलर मिसा हुआ है। वो कलर शरीर का अंदर स्टैम्प हो जाता है। हम लोगों को जो लीवर है, लीवर का ऊपर स्पॉट आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग को वो भी ध्यान रखना चाहिए। हम लोग को ज्यादा से ज्यादा शाकाहारी सब्जी ज्यादा खाना चाहिए। हर रोज थोड़ा थोड़ा मतलब सब्जी का जो होता है पालो मूला, ये जो है शाकाहारी मतलब उसको क्या पत्ता का जो है वो थोड़ा थोड़ा रखना चाहिए। पुदीना का चाटनी रखना चाहिए, टोमेटो का चाटनी, ये सब रखना चाहिए धीके धीके। तो ये सब रखने खाई এখন সব কেমিক্যাল ওষুধে तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हर चीजों में मिलावट है। ওষুধের যে পাতায় ওষুধ, আমাদের যেমন গাছের পাতায় ওষুধ দিতে হয়, গাছটা ওই পাতা থেকে তো अच्छा, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए जो खाने का ये श्लोक में जो बताया गया, शुद्ध भक्ति नियुक्त भक्ति जोगे केवल पंथा। हम लोगों को शुद्ध भक्त होना चाहिए धीके धीके। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो तो क्लोज है। और ये करना पड़ेगा, हम लोगों को काढ़ा पीना पड़ेगा। काढ़ा पिएगा तो हम लोगों का अंदर से ना थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, सर्दी का बीमारी झट से निकल जाएगा। और हम लोगों को सर्दी बीमारी नहीं होगा तो हम लोग बहुत दिनों का वो जो जैसा टीबी क्या बोलते हैं, टाइफाइड, ये सब जो बीमारी है उसमें भी थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो भक्त लोगों का क्योंकि हर चीजों में ध्यान रखना पड़ता है। जैसा हम लोग सात्विक आहार करेगा, सात्विक आहार का फॉर्मूला भी ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ सात्विक आहार बोलेगा तो सिर्फ ओनली फ्रूट खा लिया हुआ ऐसा नहीं है। सात्विक आहार का साथ साथ ये साइड का जो चीज है जैसा दूध वगैरह बोला, ये चीज होना चाहिए। फ्रूट हर रोज होना चाहिए कि उसका बाद आता है पनीर। पनीर हफ्ते में एक दिन, क्या महीना में 2 दिन होना चाहिए। सोयाबीन होना चाहिए हफ्ते में 1 दिन। हाँ, और एक बात है, सोयाबीन जो केमिकल जो सोयाबीन जो बनाता है उसमें भी थोड़ा थोड़ा केमिकल आता है, ठीक है। बनाने के लिए कोई प्रोसेस देता है। तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए जिस टाइम हम लोग ऑफर करते हैं उस टाइम वो सोयाबीन नहीं देना चाहिए। आप खाने के लिए रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और सोयाबीन का बोरी मिलता है, बोले दाना मिलता है। दाना अगर बांट के उसको बोरी तरफ के करके रूम पे बना के कर सकता है तो सबसे ज्यादा फायदा होगा सोयाबीन का बारे में से। और ऐसा रेडीमेड जो सोयाबीन मिलता है वो आप खा सकते हैं, मतलब उसको ऑफर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें केमिकल मिला हुआ होता है बहुत सारी। सोयाबीन दाना जे बोलছো तो भाजा खावा जाए। আর যারা जो भक्ति जो होगा पंथा दिया गया वही हम लोग करना चाहिए। और ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये श्लोक का भी ध्यान रखना चाहिए। इसका पहला दिन काल जो श्लोक दिया गया उसका भी। अच्छा, नेक्स्ट श्लोक जो आ रहा है, नेक्स्ट श्लोक शनिवार एंड संडे 2 दिन के लिए हम लोग देख लेता हूँ। 15 का 12 नंबर श्लोक 11 हुआ, 12 बोल रहा हूं। जदादित्य गतम तेजो जगतो भास तेह खिलम, ठीक है। जच्चंद्र मोसी जच्छाग्न तत्तेज विधि मामोकम। जदादित्य गतम तेजो जगत भास तेह खिलम जच्चंद्र मोसी जच्छाग्न तत्तेज विधि मामोकम। ये 12 नंबर श्लोक। और उसका बाद संडे का दिन, आज का दिन जो होएगा वो 13 नंबर श्लोक है। ये पुरुषोत्तम महीना का। गामा विश्व च भूतानी धारया मोह मोजोसा पुंसामी चौषधिय सर्वा समभूता रसा तम कह। गामा विश्व च भूतानी धारया मोह मोजोसा, ओके। पुसामी चौषधिय सर्वाह समाभूता रसा तम कह। रसा तमक तम कह, ठीक है। कह होगा, ठीक है, ओके। ये 2 श्लोक अगला हफ्ता के लिए। और हम लोग अभी हरे कृष्ण थोड़ा मंत्रों का जप कर लेता हूँ, ओके। अच्छा, मैं पहले बोलता हूँ। नमो विष्णुपादाय कृष्णपेष्ठाय भूतले
শ্রীমতে ভক্তি বেদান্ত স্বামী নীতি নামিনে নমস্তে সরস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্য দেশতারিণে জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।